Assalamu alaikum students. This is your physics teacher Miss Mahin. Today I am going to represent you Carnot engine. Carnot engine. Basically Sadi Carnot, a name of scientist, in 1824 he considered a hypothetical idealized engine, a perfect engine which is free from all losses, all heat losses. और अपने नाम पर इस इंजन का इसने नाम दिया कार्नोट इंजन. कंस्ट्रक्शन. It consists of, or its basic parts, a gas cylinder which is perfectly insulating walls and perfectly conducting base. Second one, perfectly insulated weightless and frictionless piston in the cylinder. Third one, ideal gas is confined in a cylinder which is used as a working substance. Now we discuss Carnot cycle. The operating cycle of Carnot engine is called Carnot cycle. Carnot का पूरा साइकिल जितने फंक्शंस को लेकर ऑपरेट कर रहा होता है कार्नोट इंजन के, वो उसका कार्नोट साइकिल कहलाता है. वर्किंग ऑपरेशन. It basically consists of four processes which are as isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, adiabatic compression. Now first is discuss isothermal expansion. For this purpose, put the cylinder on a hot source provided the temperature TH. Then we decrease the load on the piston as the piston is movable. So the result is gas is allowed to expand. And because of expansion, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल अपनी इंटरनल एनर्जी से एक्सपेंशन दे रहा है, इंटरनल एनर्जी वर्क कर रही है, तो वो डिक्रीज हो जाएगी. एंड वी नो दैट इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इन अदर वर्ड्स आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. बट चूंकि प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसो कॉन्स्टेंट थर्म टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन होना, तो वो टेम्परेचर तो यहाँ डिक्रीज हो गया. वो कांस्टेंट कैसे होगा, वो बैलेंस कैसे होगा? आपकी कंडक्टिंग बेस से गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली हॉट सोर्स से हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और आपका जो टेम्परेचर था वो रिमेन बैलेंस रहेगा. वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज हो जाएगा फ्रॉम V1 टू V2. नाउ सेकेंड वन इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन. As the definition of adiabatic, no heat flow into or out of the system. So then we put the cylinder on an insulator. Again, चूँकि expansion करवाना है, we decrease the load on the piston. And at the result of this, gas is expand. And because of this expansion, internal energy decreases. Again, the internal energy decreases, then automatically temperature will be decreases. But चूंकि यहाँ पे आपका बेस इंसुलेटर है, तो कोई हीट एनर्जी को ना वो एब्जॉर्ब कर सकता है ना वो दे सकता है सिस्टम को, तो टेम्परेचर आपका यहाँ पे डिक्रीज रहेगा. बट द वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V3 बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन. नाउ द थर्ड वन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन. For this purpose, put the cylinder on a cold source. Compression करवाना है तो cold source पे रखेंगे. Expansion करवाना होता है तो hot source पे जाते हैं. Now we put the cylinder on a cold source at the temperature TL. If we increase the load on a piston, as piston is movable, and if we increase the load on a piston, then gas molecule compressed. And because of this compression, internal energy of the system increases. Automatically temperature will be increases. बट चूँकि प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल का, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हमें रखना है, बैलेंस हमें टेम्परेचर चाहिए. तो उसके लिए हमने सिस्टम को कोल्ड सोर्स पे रखा था, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, कोल्ड सोर्स उस इंक्रीज टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका टेम्परेचर अगेन सेम हो जाएगा. एंड अगेन इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंजेस फ्रॉम V3 टू V4. Now we discuss adiabatic compression. Finally, we put the cylinder on an insulator and we increase the load on a piston.
due to which gas molecules compressed, and because of this compression again internal energy increases, automatically temperature will be increases. बट चूंकि यहाँ पे हमारी जो बेस है वो इंसुलेटर है, तो जितना इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा उसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं रखता, सिस्टम से बाहर फ्लो नहीं कर सकती हीट एनर्जी. सो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज रहेगा, एंड इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम V4 टू V1. अगेन आपको वही टेम्परेचर मिलेगा जो आपके पास फर्स्ट प्रोसेस में मौजूद था, गेन हुआ हुआ टेम्परेचर. Now we discuss efficiency of Carnot engine. As you know that definition of efficiency is output over input multiplied by 100, where output हमेशा आपका वर्क डन होता है और इनपुट आपका सोर्स होता है जहाँ से आप काम अपना स्टार्ट करवाते हो. और यहाँ पे हमारा हॉट सोर्स था तो आप QH हीट एनर्जी ले सकते हैं. वेयर वर्क डन क्या होगा, जो हाई और लो टेम्परेचर के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका बेसिकली वर्क डन करवा रहा होता है. तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा QH माइनस QL. सब्स्टिट्यूट करेंगे अब आप इक्वेशन में, देन QH को आप दोनों फैक्टर्स के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे एंड वी गेट 1 माइनस QL ओवर QH मल्टीप्लाई बाय 100. ये आपका था इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, बट इफ वी मे रिटन एज इन टर्म्स ऑफ temperature, then it will be 1 minus TL over TH multiplied by 100.